Hello guys. So today we are going to start with this IOKM course. Okay. And today will be the first lecture of basic mathematics. Okay. Let's see guys. Okay. We'll see basic mathematics. Today is session 1. Okay. Let's start with the simple things guys. We'll start with the basic things. Okay. So let us first know कि guys क्या क्या आएगा इस चैप्टर के अंदर है ना क्या क्या कवर करने वाले हम. Let me show you. Okay, guys. So the topics that will be covered in this chapter, basic mathematics mein, like basic identities, factorization, basics of inequalities, intervals and their representation on real lines, right? Wavy curve method, steps of wavy curve method basically उसी का part है, and then miscellaneous questions and all for basic mathematics. Okay, so guys, although if you guys are in 9th and 10th, you might feel some of the portion is easy. Okay, but stick to it guys, you might find something useful as such. Okay, so stick to it. Okay, let us start with the basic identities. Okay guys, तो मोस्ट ऑफ यू माइट नो दीज ऑलरेडी. ठीक है, बट हम हर एक आइडेंटिटी को प्रूव करके आगे बढ़ेंगे. ठीक है, विल ट्राई टू प्रूव इट ईच एंड एवरी आइडेंटिटी. Okay, so let's start with this guys. Okay, so guys, this is the most basic identities that we know. A plus b into a minus b is a square minus b square. Okay, and the second one is a plus b whole square and a minus b whole square are combined in the second one, right? And a cube plus b cube and a cube minus b cube are in the third one. So let me show you guys. First second तो काफी easy है. So let me show you here first कि कैसे करेंगे इसको. So guys, what to be done? Let's to understand कि कैसे आएगा. I know guys, you must be thinking कि क्यों कर रहे हैं. कोई बात नहीं, आप करते चलो बस अभी, है ना? It will not take much time. So guys, we should know how to open up the brackets. Let's see. A into A and A into B, right? क्या खुलेगा? Okay. So I'll write again. Guys, क्या खुलेगा? A into A and A into B. So let's see guys कैसे solve करेंगे इसका LHS. So see guys, A into A is A square plus A into B, AB हो गया, minus this B into A minus B into A minus similarly B into B is minus B square. So what you will guys see, AB आपके पास cancel हो रहा है and you are getting A square minus B square, right? That is the proof for the first one. Okay, now let's see for the second one guys. So first we'll do a plus b whole square. So guys, a plus b whole square is what? A plus b into a plus b, like this. So if we open it now, so a into a square बन गया a into a plus a into b plus ab plus similarly b into a and b square ba plus b square, right? तो guys इसमें आप देख सकते हो it becomes a square plus 2ab plus b square, right? So that is a plus b whole square. तो यहाँ पे अगर प्लस साइन होगा गाइस, सो हेयर ऑल्सो इट विल बी द प्लस साइन, राइट? सो लेट मी मेक सम स्पेस. थर्ड वाला भी करते हैं. सो नॉट थर्ड, फर्स्ट, पहले सेकंड का ही करते हैं. a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स a माइनस बी इंटू a माइनस बी, राइट? सो लेट्स ओपन इट अप. तो a इंटू ए गाइस क्या हो जाएगा? a स्क्वायर एंड a इंटू माइनस बी, दैट विल गिव यू माइनस ए बी. Similarly, minus b into a minus ba and minus minus b. देखो minus b into minus b becomes plus b square. So guys, we can see here a square minus 2ab plus b square, है ना? तो guys, most of you must be knowing this. ठीक है, I'm just reiterating. We'll move through it quickly, right? So guys, I hope this is clear कि कैसे expand कर रहे हैं, कैसे brackets open करके वो identities बन रही हैं. तो a square minus 2ab plus b square. Okay. Now let's do the third one. ओके, ये वाला कैसे आएगा? ओके, लेट मी शो यू. तो गाइस a प्लस माइनस बी इक्वल टू into a square minus plus ab plus b square is a cube plus minus b cube. So you also already have learned it other way around, है ना? a cube plus b cube से let's see the first one guys. तो पहला ब्रैकेट क्या बन रखा है? ओके, लेट मी शो यू. a plus b into
a square minus ab plus b square. So when you expand it, देखो guys, a को ओपन करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट इस a को यूज करके खोलेंगे तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर b plus ab square, right? And now opening it with b plus ba square minus ab square plus b cube, right? ऐसे ओपन होगा ब्रैकेट. As you can see guys, minus a square b plus a square b cancel, plus ab square minus ab square cancel, and we are left with a cube plus b cube, है ना? ये बन गया. Now similarly the other one, अगर हम a minus b into a square plus ab plus b square कर दें, okay? Now opening it up, a को open करते हैं पहले, so we'll get a cube plus a square b plus ab square, and now opening with b minus ba square minus ab square minus b cube. So बच्चों इसमें आप देख सकते हो a square b minus a square b cancel, ab square and minus ab square cancel, and we get a cube minus b cube. Okay, so you must remember these identities in the reverse order as well. So a cube plus b cube is a plus b into a square minus ab plus b square, and a cube minus b cube is a minus b into a square plus ab plus b square. Okay, so guys these identities must be known to you. Okay, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको पता है ये ऑलरेडी, है ना? Just wait for a bit, we'll see some questions based on these identities as well. Okay, all right, let's move on. Okay, let me move on to the next. Okay, all right, yes. So guys, one more thing. तो इंटरेस्टिंग वे क्या है guys, once we have done for a plus b whole square, let me come back. तो guys जैसे हमने ये प्रूव कर लिया था, एक्चुअली हमें ये सेकंड वाला प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला. कैसे? बिकॉज देखो a प्लस बी कन्वर्ट्स टू a माइनस बी. हाउ कैन आई से कि जस्ट रिप्लेस b विद माइनस बी. सो अगर लेफ्ट साइड पे हम b को माइनस बी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, राइट साइड पे भी b को माइनस बी कर देंगे. सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, a स्क्वायर एंड b a स्क्वायर तो एनीवेज अनटच्ड है, जो b स्क्वायर है इट्स साइन विल नॉट चेंज, बिकॉज इवन इफ माइनस बी का स्क्वायर करोगे इट विल स्टिल बी द सेम, बट जहां पे b की ऑड पावर्स होंगी उनका साइन रिवर्स हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे देखो गाइज, इस इक्वेशन में या आइडेंटिटी में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का तो कुछ नहीं होगा, प्लस 2ab में b की जगह माइनस बी होने से साइन यहाँ पे नेगेटिव आ गया आपके पास यहाँ पे, राइट? सो दैट इज व्हाट हैपेंस. सो सेम वे गाइज यहाँ पे भी हमें सेकंड वाला ये वाला प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज इट्स जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग b विद माइनस बी, रिप्लेसिंग b विद माइनस बी. ओके, सो गाइज एज आई सेड, आपको अदर वे अराउंड भी ये क्लियर होने चाहिए. सो a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b into a square minus ab plus b square. Okay, and similarly a cube minus b cube की factorization आपको याद रहनी चाहिए, that is a minus b a square plus ab plus b square. Okay, these must be known, remembered. Okay, all right. Okay, now let's move on to the fourth. Okay, I hope this is clear. Okay, now the fourth is a plus b whole cube and a minus b whole cube, right? So again very easy to prove. तो गाइस देखो, एक ही करेंगे हम अब से. व्हाट इज a प्लस बी होल क्यूब? ओके, सो हम प्रूव करते हैं डायरेक्ट, ठीक है? तो गाइस क्या करते हैं, आई कैन राइट इट एज a प्लस बी इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर. सो वी शुड स्टार्ट डूइंग दिस ना, कि जो आ गया है ऑलरेडी उसका यूज कैसे करें. तो गाइस a प्लस बी इंटू व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? तो गाइज लेट्स एक्सपैंड इट. क्या आएगा, ए को ओपन करते हैं, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, राइट? अब इस b के साथ ओपन करते हैं, प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. नाउ वी कैन गाइज क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देंगे, जिससे a स्क्वायर बी एंड दिस इज a स्क्वायर बी. ठीक है, तो देखते हैं, we get a cube plus 3a square b. Similarly guys, ab square 2ab square, so this becomes 3ab square
plus b cube. So that's it. So this is what you should know. Other than this, guys, there's another way of writing it as well. वो आपको पता होना चाहिए. So it is sometimes written like this as well. A cube plus b cube plus 3ab. ठीक है, because depending upon the question we might use the relevant form into a plus b. This is also the form. Okay. So guys, again जैसा मैंने आपको बोला था, अगर हम a minus b का होल क्यूब जानना चाहते हैं कि क्या होगा, all you need to do is just replace b with minus b on the left hand side as well and the right hand side as well. So a minus b होल क्यूब गाइस कैसा दिखेगा बच्चों? सी द राइट हैंड साइड इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो a क्यूब minus 3a square b. Okay, I'll write again. Plus 3ab square, b square है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड माइनस b क्यूब. एज आई टोल्ड यू गाइस, b को माइनस भी रिप्लेस कर रहे हैं तो जहां पे भी b की पावर ऑड है वहां पे साइन रिवर्स हो जाएगा, है ना? ओके. सो एंड सिमिलरली इस तरह से भी लिख सकते हैं गाइस इसको, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b. तो माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर आ जाएगा. ओके. तो गाइस दीज फॉर्म्स मस्ट बी नोन. अगर नहीं आती है तो यू शुड बी यूज टू इट, है ना? प्रैक्टिस करके इसको यूज टू कर लो. ओके. सो लेट मी शो यू ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. सो ये याद होना चाहिए, ठीक है? ऑलराइट. नाउ द नेक्स्ट आइडेंटिटी विद द होल स्क्वायर. अगर गाइस a प्लस बी होल स्क्वायर हमने कर लिया है, व्हाट अबाउट a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर? ओके, लेट्स सी. सो गाइस एक तो आप इसको एक्सपैंड, देखो अब गाइस नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड, देखो मैथ्स का यूज लॉजिक क्या है. यू माइट थिंक कि हम अब इसको गाइस मैथ्स में ना मजा इस बात का है कि अगर आप अलग अलग मेथड से किसी एक चीज को ट्राई करने की कोशिश कर सको, है ना? हमारा माइंड उस तरह से सोचे. ओके. सोचना ही तो सीखना है हमें यहाँ पे. तो गाइस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, वन थिंग कुड बी कि आप सिंपली a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी एक्सपैंड कर दो, राइट साइड मिल जाएगा. बट सिंस हमने a प्लस बी होल स्क्वायर सीख लिया है, वी कैन मेक यूज ऑफ दैट एज वेल, है ना? वही हमें लर्न करना है कैसे. ओके, आई टेल यू टू मेथड्स. तो मेथड वन है गाइस सिंपली a plus b plus c का होल स्क्वायर है, which basically means this thing, and you can keep on opening, right? तो a के साथ तो we'll get 9 terms, right? When we open it with a, we'll get a square plus ab plus ac. Then you open up with b, we'll get ab plus b square plus bc. And when you open up with c, you'll get ca plus cb plus c square, है ना? Which transforms to this, क्योंकि AB, AC, AD, BC, AB, BC and AC are 2 times. तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा, है ना? What is another method कि जो हमने अभी सीखा उसका एप्लीकेशन कैसे करें, राइट? So guys, since it's a plus b plus c whole square, I know it is a simple thing basically, but just for the students जिनको नहीं पता हो, a plus b plus c whole square है ना guys, हमने a plus b whole square तो जान लिया है. So why not consider this like this? देखो a plus b plus c whole square है ना. When we are doing the whole square, why not consider this whole thing as a single term, है ना? b plus c को पूरे को एक सिंगल टर्म मान सकते हैं ना. Now it's again a plus b whole square एक तरह से, है ना? So how do we expand it? a square plus 2ab, which is in this case b is your b plus c, right? सेकेंड वाला टर्म पूरा b plus c है. So basically guys याद भी ऐसे रखो, don't remember it like 2ab, like it's दोनों टर्म्स का स्क्वायर होता है प्लस 2 times the product of the two, है ना? ऐसे ओपन होता है. तो a स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 times प्रोडक्ट ऑफ द टू, सो 2 times a into b plus c, वो लिखना रह गया दूसरे का स्क्वायर which is b plus c whole square. नाउ एक्सपैंड गाइस, a स्क्वायर प्लस गाइस ये कैसे खुलेगा? 2ab plus 2ac, राइट? ओपनिंग अप द ब्रैकेट, एंड गाइस ये b plus c होल स्क्वायर अगेन एक्सपैंड, जो हमने a plus b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी सीखी है. सो इट इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc. सो यू कैन सी, जिसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो वो हमारे पास आ गया जो डिराइव करना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 times, you can write 2 times ab plus 2 times bc plus 2 times ca. Okay, so this must be known. Okay, I hope it is clear. Other than this guys, इसका एक I don't know, let me check if it is in the slides. Okay, it's not, so let me show you. तो guys अगर आपके पास यहाँ पे तो 3 टर्म्स थे, what if there are 4 terms, a plus b plus c plus d,
what if it was like this? So what would we get is a square plus b square plus c square plus d square plus 2 times sigma ab. What does this sigma ab mean? Okay, although guys ये सब चीजें बाद में आएंगी, it is just for the students who have already know some things. मैं इसलिए बता रहा हूँ, but what I'll explain what does this mean. तो guys देखो, हर एक का स्क्वायर तो होना ही है क्योंकि हर एक टर्म खुद के साथ मल्टीप्लाई होगा. Other than this, you'll get all the combinations of each combination. You will get two terms where each term is getting multiplied with some other term. मतलब जैसे इसमें टेकन टू एट अ टाइम, बेसिकली ट्राई टू मेक कॉम्बिनेशंस ऑफ टेकन टू एट अ टाइम. किन दो के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? लेट मी शो यू. सो दैट इज ए बी ए सी ए डी, देन बी सी बी डी एंड सी डी. सो यू आर गेटिंग 6 टर्म्स. यहाँ पे गाइस ए बी बी सी सी ए जैसे 2-3 टर्म्स आए थे ना अलग अलग, जिनका 2 टाइम्स आ रहा था. सो इफ इट इज a plus b plus c plus d होल स्क्वायर, you'll get these 6 टर्म्स. इनका ट्वाइस ऐड होके साथ में यहाँ पे आएगा. सो दैट इज व्हाट इट मीन सिग्मा ऑफ ए बी, की दो के टर्म्स, हर दो के टर्म्स के कॉम्बिनेशंस का सम आएगा. ओके, सिग्मा मीन्स समेशन, सम. ओके, डोंट वरी अगर आपको ये वाली चीज नहीं समझ में आई गाइस, इट विल बी कवर्ड लेटर ऑन एज वेल. सो डोंट वरी, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाएंगी. ओके, फॉर द टाइम बीइंग इट्स फाइन अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया. ओके, ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर गाइस. इफ नॉट, प्लीज थोड़ा सा बैक करके दोबारा इसको वॉच करो. ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट. So that's the proof, right? Okay, now some different types of formulas guys that you should know. ठीक है, कैसे वर्क करता है देखो. You'll see a pattern. तो guys हमने क्या देखा था before this? We saw what? देखो, we saw this thing, identity of a cube minus b cube, right? So a minus b into a square plus ab plus b square equal to a cube minus b cube. ये हमने देखा था, राइट? सो नाउ गाइज इफ यू सी कि अगर a माइनस बी की जगह अंदर जो सेकंड ब्रैकेट है, सी द पैटर्न केयरफुली गाइज, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग. अगर हमें पैटर्न देखना आना चाहिए, राइट? तो गाइज एज वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू कैन सी a की डिग्री कम हो रही है एक से एंड b की बढ़ रही है. सो इट्स लाइक यू आर मल्टीप्लाइंग दिस टर्म्स with b by a. Isn't it like this? Till a is completely removed. आप वहां पे जाके रुक जा रहे हो. So when you open up these brackets, what happen guys? बहुत सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं and you are simply left with a power 4 minus b power 4. Similarly डिग्री देख सकते हैं because a minus b आ रहा है and अंदर डिग्री क्या है? क्यूब, राइट? तो टोटल मैक्सिमम डिग्री तो 4 हो गई. तो a power 4 minus b power 4. Similarly you go with this जब a power 5 minus b power 5, right? So what you can observe simply guys कि जो terms हैं, now if I do this generalization, so this will be the generalized form a minus b into a power n minus 1, है ना? एक डिग्री कम कर देंगे अगर, मतलब आपको फिर n minus 1 है, तो as you can see again a की डिग्री एक से कम करते जा रहे हैं, b की एक से बढ़ाते जा रहे हैं and we go till b power n minus 1 and this should give you a power n minus b power n. Okay, you might be thinking ये ऐसा क्यों हो रहा है ना? So let me show you by proving it. Okay, तो guys लेफ्ट साइड एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एक्सपैंड करते हैं. There's another proof for this as well guys. वो I don't know, everyone must not be knowing at this point of time. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है? बट एज इन दिस कोर्स विल स्टडी, व्हेनेवर विल स्टडी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, इन सीक्वेंसेस एंड सीरीज, तो वहां पे आई विल कवर दिस थिंग एज वेल. ओके, सो दिस विल गेट द सेकंड प्रूफ लेटर ऑन. तो अभी हम बेसिक सा प्रूफ करेंगे बाय ओपनिंग अप और एक्सपैंडिंग द ब्रैकेट. ओके, तो बच्चों कैसे करेंगे देखो, खोलते हैं. लेट्स ओपन अप द ब्रैकेट्स. ए के साथ क्या खुलेगा गाइस? ए को जब इससे मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, you'll see the first term will be opening up as a power n, then प्लस क्या खुलेगा? एक एक पावर बढ़ती जा रही है, सो a power n minus 1 b प्लस a n minus 2 b square and you'll see लास्ट टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा गाइस, you'll get a into b की पावर n minus 1, right? Now let me open up with b, I'll write just under it. तो गाइस फर्स्ट टर्म क्या आएगा देखो, माइनस b इंटू ए पावर n माइनस 1. सो माइनस a पावर n माइनस 1 इंटू b, है ना? नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा? b की एक डिग्री और बढ़ जाएगी एंड a की एक कम हो गई, सो माइनस साइन
minus a into n minus 2 into b square. So you'll see guys same minus signs आ रहे हैं. तो गाइज इस टर्म से सेकेंड लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन. एंड लास्टली जब गाइज लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा इससे what we'll get is minus b की पावर n. So guys as you can see मैंने उसके नीचे नीचे ही लिखा है so that you get to see it clearly कि ये टर्म्स ये कैंसिल हो गए, ये आपस में कैंसिल, सारे टर्म्स ही कैंसिल हो जाएंगे आपस में इनमें बीच में, राइट. सो व्हाट आर वी फाइनली लेफ्ट विद a पावर n माइनस b पावर n. सो दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद फाइनली, है ना. तो आप देख सकते हो. सो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं इन आइडेंटिटीज को. Okay, let me show you. So this is this identity a minus b into a power n minus 1 से अगर शुरू होता है ना, तो प्लस होता जा रहेगा. इस क्या टर्म्स का सम हो रहा है जिसमें a की डिग्री कम हो रही है एक से और b की डिग्री एक से बढ़ रही है. तो with that combination all the signs are same, plus sign will give you a power n minus b power n for all n belonging to natural number. This guys, this thing means कि यहाँ पे जो आपका n है it could take any natural numbers value 1 2 3 4 अप टू कुछ भी नेचुरल नंबर वो एज्यूम कर सकता है वैल्यू में, ठीक है. सो दिस इज द प्रूफ कॉरेस्पॉन्डिंग. ओके, आई होप इट इज क्लियर गाइस, है ना. ऑलराइट, नाउ गाइस देयर इज अ वेरिएशन टू इट. आपने गाइस ये सोचा होगा कभी, है ना, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तो हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, है ना, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं हो पाता है. सो इंटरेस्टिंगली गाइस व्हाट विल हैपन इफ आई रिप्लेस बी विद माइनस बी इन दिस. Think of it carefully. होता क्या है ना, what if I replace b with minus b in this identity? So see guys what happens left side पे, ये तो a plus b हो गया, right? And in this bracket what will happen, a power n minus 1. देखो guys सेकेंड टर्म में यहाँ पे b होगा. okay, I'm sorry यहाँ पे guys b मिसिंग है, ये होना चाहिए. okay, all right, okay, यहाँ पे लिखा हुआ है. okay, it's missing there. okay, we'll correct it. okay, तो गाइस सेकंड टर्म में एक b की पावर आ रही है तो वो माइनस हो गया, साइन क्या बन गया, तो a पावर n माइनस टू इंटू बी प्लस सेकंड नेक्स्ट टर्म में गाइस b स्क्वायर आएगा सो द साइन विल नॉट गेट इफेक्टेड, a पावर n माइनस थ्री इंटू बी स्क्वायर. सो यू गेट द जिस्ट ऑफ इट. तो गाइस लास्ट टर्म क्या बन जाएगा, माइनस b की पावर n माइनस वन, राइट. दिस इज व्हाट हैपन ऑन द राइट लेफ्ट हैंड साइड. ऑन द राइट हैंड साइड a पावर n माइनस इट इज माइनस b की पावर n. So guys देखो एज सच ये आइडेंटिटी काम की नहीं है, बट इफ आई नो दैट n इज ऑड, राइट, सो आई विल बी एबल टू राइट, आई विल एबल टू टेक दिस नेगेटिव साइन आउटसाइड. दैट इज द होल पर्पस ऑफ इट. बिकॉज अगर अब n इवन है ना फिर फर्क नहीं पड़ता उसको, है ना. इफ n इज इवन इट विल नॉट गेट इफेक्टेड. ओके, ये आइडेंटिटी बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रह पाएगी अगर n इवन होगा, है ना. सो नाउ व्हाट विल हैपन फॉर n ऑड. ओके, I'll write here for odd n what will happen to the right hand side, it will become a power n plus b power n. क्योंकि n अगर odd है guys तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा and this will become the factorization. So you can see guys आपको अगर याद हो I'll show you an idea of it कि a plus b into a square minus ab जो आपको शायद पढ़ी होगी आपने, हमने अभी आज ही करी है, प्लस बी स्क्वायर. इसको तो हम लिखते हैं ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब. वी गेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब विद दिस. देखो तो साइन अंदर ऑल्टरनेट हो रहा था, प्लस माइनस प्लस, ऑल्दो यस बी स्क्वायर तक खत्म हो गया है बट ठीक है. तो उसको आप फैक्टराइज कर सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, राइट, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को नहीं कर पाओगे. दैट्स द रीजन. ठीक है. सो फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ एन, नेचुरल नंबर ऑफ एन, है ना, ऑड नेचुरल नंबर्स एन, यू कैन गेट ए पावर एन प्लस बी पावर एन एज वेल. बट वो किसके लिए होगा, सिर्फ ऑड पावर्स, ऑड वैल्यूज के लिए. ओके, सो यू कैन सी हियर कि a प्लस बी इंटू ए पावर n माइनस वन सिमिलर वे में शुरू होता है गाइस. तो बस a माइनस बी की जगह एक तो बाहर फैक्टर क्या है, a प्लस बी है, एंड देन द साइंस आर गेटिंग ऑल्टरनेटेड इनसाइड, है ना, प्लस माइनस चलता जाएगा जस्ट ड्यू टू द फैक्ट कि b की पावर्स एक एक करके बढ़ रही थी ना. जब भी ऑड आती है तो माइनस हो जाता है, जब भी इवन हो रही है तो प्लस रह जाता है. ओके, सो दैट इज द होल थिंग. All right, I hope it is clear. All right, all right, okay. तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि दिस आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ओनली ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स. ओके,
दैट शुड बी क्लियर। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं गाइस। सो नाउ सम मोर कुछ डिराइव्ड फॉर्मूलाज देखते हैं गाइस। सम फॉर्मूलाज आर डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मूलाज दैट वी हैव जस्ट लर्नड। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो, आप कोई भी एक फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस में आया था? सेकंड फॉर्मूला में आया था। लेट मी जस्ट ओके ओके देखो। सो गाइस लाइक वी हैड a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab, right? So what if you take this term to the left hand side, है ना? तो you can write a square plus b square equal to a plus b whole square minus 2ab. So this is what is written here, nothing much. ठीक है, बस वो टर्म को उधर लेके जाने तो वो बन जाएगा। और I could similarly write this as a minus b whole square। तो गाइस क्योंकि a minus b अगर रहा होता है यहाँ पे, है ना, यू कैन सी हियर इफ इट वुड हैव बीन माइनस हियर, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाता, और वो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा इन दैट केस। सो दिस इज व्हाट यू कैन राइट। ओके, ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो गाइज ये तो बड़ा सिंपल है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। जब आप ओपन करोगे गाइज, व्हाट विल हैपन इफ यू राइट इट डाउन? ओके, आई थिंक गाइज वी शुड नॉट बी, इट शुड नॉट बी नीडेड बेसिकली, है ना, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जब खोलोगे तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर plus 2ab. Let me show here. Okay, so we'll get a square plus b square plus 2ab, and we are subtracting a square a minus b whole square, which is a square plus b square minus 2ab. So guys, क्योंकि ये subtract हो रहा है, you can see a square and b square will get cancelled, है ना? तो 2ab minus minus 2ab will give you 4ab, correct? Okay, so this is from there, very simple. And then the third point is again guys derived from the a plus b whole cube का जो मैंने आपको फॉर्म बताया था ना, देखो we said a plus b whole cube, जो मैंने आपको दूसरा फॉर्मेट बताया था, so which was a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. तो guys if you take these terms to the other side, you'll get this format, है ना? देखो a cube plus b cube will be equal to a plus b whole cube minus 3ab times a plus b, and similarly b को आप minus b रिप्लेस करके थर्ड पॉइंट लेके आ सकते हो, द माइनस सिंबल वाला, है ना? सो विल नॉट गो इनटू दैट नाउ, राइट नाउ, है ना? अब काफी बार हमने कर लिया है, नो यू मस्ट बी गेटिंग बोर्ड बाय नाउ, ठीक है? तो थोड़ा इसको हम आपके ऊपर ही छोड़ते हैं, आप करके देखना। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट वी कैन see that in the chat section, right? Later on you can post your doubts in there. Okay, all right, now the fourth one, ठीक है? फोर्थ आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, यू आइडली शुड स्टार मार्केट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉट इवन जस्ट की ओलंपियाड के लिए, रादर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एज वेल, उसमें भी ये काफी काम आता है। ओके, हाईली यूज्ड, ओके, फ्रीक्वेंटली यूज एज वेल, मतलब इस सेंस में कि अलजेब्रा अगर आएगा तो ये इसका यूज आ जाता है कई बार, है ना? सो व्हाट डज द आइडेंटिटी से? ओके, आई विल शो यू इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, so a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, this is your left hand side, and it can be factorized as, on the right hand side as you can see, a plus b plus c multiplied by a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपका ये होता है। सो लेट अस सी कि कैसे डिराइव कर सकते हैं गाइस। ओके, लेट अस सी हाउ टू डिराइव इट। ओके, तो देखो गाइस, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc है, एंड वी सी के a प्लस बी प्लस सी चाहिए। वाई नॉट फैक्टराइज द होल थिंग, कि जैसे देखो होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका होल क्यूब करने के लिए क्या चाहिए मुझे? सो आई नीड, आई एड माई सेल्फ 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर चाहिए, है ना? तो ऑलरेडी हमारे पास क्या था, c क्यूब, इसमें अगर हमने ये दो टर्म्स गाइज ऐड करी हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर सकते ना ऐसी। तो माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a बी स्क्वायर एंड माइनस 3abc हमारे पास पड़ा हुआ है। ओके, वी आर लुकिंग आउट अबाउट LHS। नाउ गाइस सी, ये पूरा एक्सप्रेशन आपके पास क्या बन गया? a प्लस बी होल क्यूब, राइट, दिस इज a प्लस बी होल क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक है?
ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द लेफ्ट अदर टर्म्स? तो गाइज ये क्या टर्म्स हैं? इनमें क्या होगा? ए बी कॉमन आ जाएगा, -3ab, राइट, एंड व्हाट आर वी लेफ्ट विद? a प्लस बी प्लस सी, है ना? -3ab अगर हम कॉमन लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, यस, सो वी हैव a प्लस बी प्लस सी, राइट? नाउ व्हाट वी कैन डू इज जस्ट नाउ गाइज, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, वी कैन फैक्टराइज दीज टू, नाउ इट इज लाइक a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, देखो ध्यान से, सो व्हाट इज a क्यूब प्लस b क्यूब? इट इज a plus b, so it is, in this case it will become a plus b plus c, and ब्रैकेट में क्या आएगा गाइस? देखो क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वो लगाएंगे, सो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी विच इज इन दिस केस a प्लस बी इंटू सी, राइट, प्लस सी स्क्वायर, राइट, माइनस 3ab इंटू a प्लस b प्लस सी. सो गाइज नाउ वी कैन सी कि ये दोनों टर्म्स में a प्लस बी प्लस सी फैक्टराइज हो सकता है, कॉमन आ सकता है, दैट्स इट, काम हो गया हमारा. यू कैन सी a प्लस बी प्लस सी इज कॉमन, एंड बाकी के एक्सप्रेशन में गाइज क्या होगा? इसको ओपन कर देते हैं, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको भी ओपन कर देते हैं, माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या आया? -3ab, that's it. So guys, if you see here carefully, minus AC minus BC तो आ रहा है, and 2AB minus 3AB combine होके minus AB बचेगा, so you'll get the desired or the final form, that is A plus B plus C into A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA. So guys, you might be thinking कि क्यों कर रहे हैं प्रूफ? The point is you must know कि कैसे कैसे हम इसको मैनिपुलेट करके सॉल्व करके लेके आ सकते हैं, ओके, एंड इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ठीक है ना? तो ये तो याद रहना ही चाहिए गाइस, टू द पॉइंट, ओके. रादर आई विल गिव यू अनदर थिंग अबाउट दिस थिंग, ओके, नहीं और अलग से चीज बताता हूँ गाइस, जो ये वाला एक्सप्रेशन है ना आपका, दिस एक्सप्रेशन, आई विल टेल यू अनदर फॉर्म. तो गाइज अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं इसको आपको एक सेपरेट चीज सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ओके. सो सी गाइज, इफ आई मल्टीप्लाइड बाय हाफ, व्हाट विल गेट इनसाइड? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये लिख सकते हैं ना? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस टर्म, दिस ब्रैकेट, ओके. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये भी काम आता है बड़ा. तो हाफ टाइम्स, तो गाइज अंदर क्या होगा? आप देखो, यू हैव 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर एंड माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca. तो गाइज टू कंप्लीट अ होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab चाहिए. सो व्हाट विल डू इज, इसको गाइज ऐसे ब्रेक डाउन करके लिखते हैं, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac. कैन आई राइट इट द होल ब्रैकेट लाइक दिस, है ना? तो आप देखो ना, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा और तो कुछ नहीं लिखा, सी स्क्वायर को भी प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर को लिखा है, एंड 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा. सो गाइज वो क्या रहा है, एक एक स्क्वायर मिलके अपना 2ab 2bc 2ca के साथ होल स्क्वायर्स क्रिएट कर लेंगे. सो विल गेट सिंपली हाफ टाइम्स a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b minus c whole square and c minus a whole square. So it basically gives you the sum of whole squares, and it is very very useful sometimes depending on the case. Let's say you are given कि a cube plus b cube plus c cube minus 3abc 0 है. Now I'll come back, okay. ये लिखा हुआ है हमने property, okay. Now you see guys, this is a special case, okay. Now listen to me very very carefully, okay. तो गाइज ये स्पेशल केस क्या बोल रहा है, दैट इफ a प्लस बी प्लस सी जीरो, तो गाइज अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा ब्रैकेट में, विच इंप्लाइज राइट हैंड साइड विल बिकम जीरो. इफ a प्लस बी प्लस सी जीरो, राइट हैंड साइड विल बिकम जीरो, राइट, विच विल लीव अस विद द गिवन फॉर्म a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc जीरो, है ना? ये पूरा जीरो हो जाएगा. सो यू कैन टेक दिस टर्म टू द अदर साइड एंड यूल गेट दिस फॉर्म, दैट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब
is equal to 3abc, right? I hope this is clear, है ना, कि अगर a plus b plus c 0 होगा then a cube plus b cube plus c cube will be equal to 3 times abc. Okay, but what if we are provided the other way around? ठीक है, तो गाइज ये आपको क्लियर होना चाहिए. बट व्हाट इफ लेट्स से हमें पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब is given to be equal to 3abc, then what? अब गाइज द टेबल्स हैव टर्न्ड, है ना, अब उल्टा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब गिवन है कि इट इज इक्वल टू 3abc. देन व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम इट? यू कैन नॉट से बच्चों, अगर आपने ये सोचा ना कि सिर्फ a प्लस b प्लस c 0 होना चाहिए, फिर yes that might be, but there is another possibility as well. है ना, तो गाइज अगर हमें ये दिया हुआ है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज 0 इज 3abc, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं. अगर ये 0 है गाइज, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज 0, दैट मींस द प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स इज 0. अंडरस्टैंड दिस थिंग, the product of these two brackets is 0, so this implies either a plus b plus c 0, कि भाई या तो a plus b plus c 0 हो जाए, that is also fine, right hand side 0 हो जाएगा उससे, और गाइस ये सेकंड ब्रैकेट भी तो 0 हो सकता है ना, इट कुड बी कि सेकंड ब्रैकेट 0 हो जाए, बट इफ इट हैज टू बी 0, इफ इट हैज टू बिकम 0, हमने क्या पढ़ा था अभी कि दिस ब्रैकेट इज सम ऑफ होल स्क्वायर्स. लेट अस सी हियर, लेट मी शो यू. ये गाइस ये क्या बनाया हमने, सम ऑफ होल स्क्वायर्स बनाया. एंड हाउ कैन द सम ऑफ 3 होल स्क्वायर्स बी 0? 3 होल स्क्वायर्स का सम अगर 0 होना चाहिए, इट मींस ईच एंड एवरी टर्म हैज टू बी 0, राइट? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी 0 होना चाहिए, b माइनस सी का भी, c माइनस ए का भी, है ना, विच विल इम्प्लाई a इक्वल टू b इक्वल टू c, है ना. तो a इक्वल टू b होना पड़ेगा क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर हैज टू बी 0, एंड सिमिलरली b माइनस सी हैज टू बी 0, b माइनस सी होल स्क्वायर हैज टू बी 0, तो b और c भी इक्वल होने पड़ेंगे, विच इन, एंड फाइनली a इक्वल टू b इक्वल टू c होना चाहिए. यहां से आप देख सकते हो गाइस. ओके, डोंट वरी अबाउट इट गाइस, अगर थोड़ा आपको लग रहा है कि ज्यादा हो गया, धीरे धीरे ये क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना, क्योंकि ये 3 स्क्वायर्स का सम है वो एक्सप्रेशन जो आपका ये ब्रैकेट है, इट इज सम ऑफ 3 होल स्क्वायर्स, एंड इफ इट इज 0, if it has to be 0, it only happens in the case when a equal to b equal to c हो रहा है, because it is the sum of these 3 whole squares and each of these whole squares will put equal to 0. Okay, I hope guys this is clear to you guys, है ना. All right, let's see. So as I told you, this is the whole proof. Okay, and guys you must know this special case, very very important, जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं. Okay, finally guys the theory has been almost covered for this session, है ना. तो हम कुछ questions करते हैं. तो guys how we'll go about it is, so guys जो मैं questions let's solve this together मैं डाल रहा हूँ. Okay, I'll solve this, है ना. Although you guys what you can do is pause the video here, जब question मैं show करूँगा आपको, you can pause the video, try it yourself, give it a good try and then continue, right? हो गया तो भी अच्छा है, नहीं हुआ तो समझने के लिए उसको वॉच करो, है ना. दिस इज व्हाट यू कैन फॉलो इन ईच एंड एवरी केस ऑफ क्वेश्चन. जब भी मैं आपको क्वेश्चन पुट ऑन करूंगा, बी इट सॉल्व टुगेदर का क्वेश्चन या फिर क्विज का क्वेश्चन टाइप दे दूं मैं आपको कि आपको सॉल्व करने के लिए बोल दूं, जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि आप पॉज करो वीडियो, अपने आप से सॉल्व करो एंड देन गिव इट अ गुड ट्राई एंड देन मूव फॉरवर्ड. ठीक है, ऑलराइट, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग सो दैट यू टू इंश्योर द मैक्सिमम लर्निंग आउटकम. ठीक है, आपको मैक्सिमम लर्निंग हो जाए, इसके लिए दे रहा हूँ. ओके, ये आइडिया. ऑलराइट, लेट्स सी द क्वेश्चन गाइस, लेट्स सी सम क्वेश्चंस. ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं आइडेंटिटीज को स्मार्टली. ओके, द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 13579 डिवाइडेड बाय 13579 माइनस नेगेटिव टाइम्स का स्क्वायर प्लस माइनस 153578 एंड 13580. गाइस वन मोर थिंग, फॉर मैथ्स ओलंपियाड यू शुड हैव सम नैक ऑफ नंबर्स. आई मीन टू से कि थोड़ा उसको ऑब्जर्व करो, ऐसा नहीं है कुछ कि अपने आप से आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, स्टार्ट ऑब्जर्विंग द नंबर्स. गाइस यहाँ पे जैसा हम देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नेगेटिव साइन इज यूजलेस, है ना, इट विल नॉट चेंज एनीथिंग, है ना. नेगेटिव है तो स्क्वायर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो इसको थोड़ा लिखते हैं पहले एक बार, 13579 डिवाइडेड बाय, दिस इज सिंपली 13579 का होल स्क्वायर. I can write it this way as well. And यहाँ पे जो माइनस साइन है guys, I can take it outwards, outside, minus 13578 into 13580,
राइट। तो गाइस इंटरेस्टिंगली देखो क्या लग रहा है। सो टू मेक इट सिंपल, आप एक चीज ऑब्जर्व क्या कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन बस सिंपल सा ये कि भाई ये वाला नंबर एक कम है, this number is one lesser than 13579 and this is one greater. Okay, so it will look very simple if I just do one thing. So guys, what if we just put 13579 as some a, इसको कुछ वेरिएबल a डाल देता हूँ, right? What will this expression look like then? देखो, न्यूमरेटर इज a, डिनोमिनेटर में क्या है, a स्क्वायर माइनस 13578, गाइस a से a कम है ना, वन लेसर, तो a माइनस वन लिख सकता हूं उसको। सिमिलरली 13580 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस वन लिख सकते हैं, राइट, दैट्स इट। नाउ लेट्स अप्लाई द आइडेंटिटी इन द डिनोमिनेटर गाइस, यहां पे हम यूज करेंगे आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, प्लस a प्लस वन हो रहा है इंटू a माइनस वन हो रहा है। सो लेट्स अप्लाई द आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर माइनस, गाइस ऑलवेज पुट इन ब्रैकेट्स, है ना, नेगेटिव साइन वगैरह आता है, गलती हो जाती है स्टूडेंट से, पुट अ ब्रैकेट, ओके। सो आई पुट अ ब्रैकेट हियर एज वेल, तो गाइस अंदर क्या ओपन होगा, a square minus 1 square, so it becomes a square minus 1. So guys, when you open up the bracket, let's see क्या बनेगा, you can see simply कि a square और ये a square cancel हो जाएगा, right? So we are left with a upon minus of minus 1, 1 हो गया, so we are left with a, and what was a, guys वो हमने लिखा था 13579 को, right? So the answer for this question should be 13579 simply, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करी हुई है बस क्वेश्चन को, ओके, ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर, ओके, एज यू कैन सी 13579, ओके, ऑलराइट, लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं, ओके, नाउ लेट्स सी गाइस, so question is 83 cube plus 17 cube divided by 83 into 66 plus 17 square. So guys it might not look much कि क्या करें अब इसका, है ना, we can get an idea, ठीक है, एटलीस्ट नीचे 17 का स्क्वायर दिख रहा है हमें, 83 भी दिख रहा है ऊपर, और 66 जो दिख रहा है गाइस, व्हाट डू वी नीड टू ऑब्जर्व, इजंट 66 द डिफरेंस ऑफ 83 एंड 17, है ना, 83 माइनस 17 लिख सकता हूं उसको। सो बोथ वेज विल गेट इट वेरी इंटरेस्टिंगली, देखो गाइस, ओके, सो लेट्स सी द एलएचएस। तो गाइस ऊपर तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं अभी के लिए, 83 क्यूब प्लस 17 क्यूब, डिनोमिनेटर में गाइस जो ये 66 है, लेट अस राइट इट एज 83 माइनस 17, so our expression will look like 83 into 83 minus 17, है ना, प्लस 17 स्क्वायर, राइट। सो गाइस क्या करेंगे अब, हम न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब लगा के, है ना, तो क्या बन जाएगा 83 प्लस 17 इंटू क्या लिखेंगे 83 स्क्वायर माइनस 83 इंटू 17 प्लस 17 स्क्वायर, राइट। डिनोमिनेटर में गाइस अगर हम इसको ओपन करेंगे ये ब्रैकेट को, तो क्या मिल रहा है देखो, 83 स्क्वायर माइनस 83 इंटू 17 प्लस 17 स्क्वायर, राइट। तो गाइज अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि गाइज ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम, वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद 83 प्लस 17 विच इज सिंपली 100। देखो कितना सिंपल बन जाता है, लेकिन ये एक्सप्रेशन क्या देखने में खतरनाक सा लग रहा है ना। तो आइडेंटिटीज के यूज से यू कैन डू दीज थिंग्स। आई कैन इवन गिव यू स्मॉल एग्जांपल्स गाइस, हम आइडेंटिटीज स्टूडेंट्स ने यूज नहीं करते हैं इजीली इन, नॉट जनरली कि क्वेश्चन में ही ऐसा पूछा जाएगा उसके रिस्पेक्ट में, ऐसा नहीं है। समटाइम्स यू माइट गेट अ कैलकुलेशन की 88 इंटू 92 कितना है ना, आई एम जस्ट सेइंग कि कैलकुलेशन के टाइम पे नोबडी इज सेइंग कि सॉल्व करना है इस तरह से, व्हाट स्टूडेंट्स टेंड टू डू इज कि मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं इसको, बट इफ यू लुक एट इट केयरफुली इट इज 90 प्लस 2 इंटू 90 माइनस 2, है ना, इजंट इट, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया, इट इज 90 प्लस 2 इंटू 90 माइनस 2, है ना। लेट मी कीप इट ऑन, थोड़ा इसको शिफ्ट कर देते हैं, ओके। व्हाट यू कैन सी हियर इज 90 प्लस 2 इंटू 90 माइनस 2, विच मीन्स 90 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, विच इज क्वाइट इजी, 90 स्क्वायर इज 8100, ये हम ओरली कर सकते हैं, तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, 8096 आ जाएगा, है ना। सो द थिंग इज कि यू हैव टू बी
यू नो नंबर्स को देखो थोड़ा सा, कहीं पे भी बीच में कैलकुलेशंस भी आते हैं, यू कैन मेक यूज ऑफ दोज आइडेंटिटीज समटाइम्स। आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम, बट समटाइम्स इट माइट हेल्प, है ना, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, इजी कर देगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर गाइज, लेट्स कंटिन्यू। सो एज आई वी सॉ 100 आंसर हो गया। ओके, लेट्स सी। ओके, नाउ गाइज यू कैन सी दिस क्वेश्चन वेरी मच सिमिलरली, ये क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, है ना। देखो, सो 2009 2008 का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में उसी नंबर से एक कम का होल स्क्वायर प्लस एक ज्यादा का होल स्क्वायर -2 है ना। वी हैव टू ट्राई टू लुक इट इन दिस फॉर्म। तो गाइज ऑब्वियसली बार बार बड़ा बड़ा नंबर नहीं लिखना पड़े, है ना। तो क्या करते हैं, लेट्स पुट 2009 2008 एज ए या एक्स, कुछ भी मान लो, है ना। सो व्हाट विल दिस एक्सप्रेशन लुक लाइक। गाइज लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन गया, ऊपर ए स्क्वायर, है ना। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, व्हाट इज दिस 2009 2007, ये इस ए से एक कम है, राइट, वन लेसर, सो a minus 1 होल स्क्वायर। सिमिलरली द नेक्स्ट टर्म इज वन ग्रेटर, है ना, वो एक बड़ा है उससे, तो इट विल बिकम a plus 1 होल स्क्वायर -2, राइट, ये हो गया। सो नाउ व्हाट इज दिस, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, गाइस देखो नीचे क्या है, a minus 1 होल स्क्वायर प्लस a plus 1 होल स्क्वायर, तो a plus b होल स्क्वायर प्लस a minus b का होल स्क्वायर हो गया एक तरह से, है ना। ओके, आई थिंक वी माइट हैव मिस्ड दैट वन, बट दैट इज आल्सो इजियर वन। a plus b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, चलो स्किप हो गया होगा, वो हम ऐड कर लेते हैं। एंड a minus b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। so guys if you add these, what do you get, प्लस a minus b होल स्क्वायर। यू कैन सी हेयर कि गाइस 2ab टर्म कैंसिल हो जाता है इसमें, है ना। what you get is 2 times a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो इसी का ही हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं, वी आर यूजिंग दिस, और यू कैन सिंपली एक्सपैंड द फॉर्मूलाज एज वेल, डजंट मैटर, है ना। वो 2ab और 2ab का टर्म कैंसिल हो जाएगा दोनों टर्म्स में, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो गाइज विल गेट 2 टाइम्स a स्क्वायर +2, है ना, +1 दो बार आएगा और एक -2 हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है। सो गाइज बहुत सिंप्लीफाई हो गया, देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर। अगेन नाउ वी कैन सी a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल, this will give us the value half, है ना। so the final answer to this question should be half, simply, है ना। तो कितना इजीली सिंप्लीफाई हो गया, a पे डिपेंडेंट ही नहीं है जबकि ये एक्सप्रेशन, है ना। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग्स। ओके, आइडेंटिटीज में कैसे डील करेंगे। सो लेट्स सी, इफ x plus 1 by x is given to us as 3, ये एक्सप्रेशन बड़ा यूजफुल है गाइस। क्यों, जहां पे भी इन दो का प्रोडक्ट होता है ना, वो 1 हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ओके, सो विल सी दिस थिंग इन दिस क्वेश्चन, एंड वी आर सपोज टू फाइंड x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4। तो गाइस इसका सीधा x पावर 4 मत कर देना, है ना। लेट अस डू दिस थिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। तो गाइस इक्वालिटी के दोनों तरफ कोई भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं, राइट। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, व्हाट डू वी गेट, x स्क्वायर, द फॉर्मूला इज a प्लस b होल स्क्वायर, राइट। तो क्या होता है वो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab टर्म, देखो गाइस बड़ा इंटरेस्टिंगली क्या आएगा, x इंटू 1 बाय x, एंड दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर विच इज 9। तो गाइस क्या देखोगे यहाँ पे, x और x कैंसिल हो गया, है ना। सो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2 आ गया, उसको राइट साइड लेके जाएंगे हम, 9 माइनस 2 इज 7, राइट, इस 2 को हम राइट साइड ले जाएंगे। सो नाउ हाउ डू वी फाइंड x पावर 4 प्लस 1 बाय x पावर 4, स्क्वायर अगेन। सो स्क्वायरिंग अगेन, व्हाट डू वी गेट, x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस 2 आ जाएगा, राइट। अगेन आई विल शो यू, तो 2ab टर्म क्या आएगा, x स्क्वायर इंटू 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, है ना। सो गाइस आई विल शो यू अगेन, तो x स्क्वायर फिर कैंसिल हो गया, तो 2 को राइट साइड लेके जाएंगे। सो गाइस द आंसर शुड बी x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 शुड बी इक्वल टू 49 माइनस 2, राइट। राइट साइड जाएगा तो 2 माइनस हो जाएगा, विल गेट 47,
सो दैट इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। इंटरेस्टिंग, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो. सो डू रिमेंबर दिस थिंग गाइस कि टर्म प्लस इट्स रेसिप्रोकल, रिमेंबर इट लाइक दिस, नॉट ओनली एक्स प्लस वन बाई एक्स, कोई भी टर्म है प्लस उसका रेसिप्रोकल का अगर वैल्यू पता है ना, तो अगर आप स्क्वायरिंग करते हो तो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद 2ab टर्म है ना, इट विल बिकम कांस्टेंट 2 ओनली, बिकॉज टर्म इनटू इट्स रेसिप्रोकल हो जाएगा विच इज 1, है ना. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. यू कैन कंफर्म द आंसर एज वेल, है ना. तो गाइज आई होप इट इज क्लियर, सबको समझ में आ रहा है. ओके, सो गाइज एज आई टोल्ड यू, प्लीज सॉल्व इट, साथ साथ में सॉल्व करो, बिना देखे सॉल्व करो, सो दैट यू अंडरस्टैंड मच मोर. ठीक है, आई अंडरस्टैंड जितना भी वीडियो का लेंथ है आपको उससे टाइम ज्यादा लगेगा देखने में, करने में, बट दैट इज द वे टू लर्न. अगर आप एक्चुअली लर्न करना चाहते हो वही करना फॉलो. ओके, ऑल राइट. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. तो गाइज हमें क्या पता है यहाँ पे, वी नो द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स, है ना. हमें x माइनस वाई पता है, एक्स वाई पता है. लेट अस ट्राई कैसे फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर. तो लेट अस सॉल्व फॉर दिस. व्हाट इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर. आई हैव टू ट्राई टू राइट डाउन दीज टर्म्स इन टर्म्स ऑफ x माइनस वाई एंड एक्स वाई, है ना. तो गाइस एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं, देखो. व्हाट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट. लेकिन गाइस मुझे तो x माइनस वाई दिया हुआ है, बट व्हाट इज x माइनस वाई होल स्क्वायर. उसके लिए मुझे चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना. तो गाइस क्यों ना हम ऐसा करें, माइनस 2xy प्लस 2xy कर देते हैं, है ना. एंड नाउ लेट अस कंबाइन दीज टर्म्स, दिस एंड दिस, जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं. तो गाइस क्या बन गया, दिस इज x माइनस वाई होल स्क्वायर, है ना, प्लस 4xy. नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. x माइनस वाई कितना है, 8 है, तो 8 स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 15, है ना. तो कितना आ गया, 15 इंटू 4 इज 60, माइनस 60, तो आंसर शुड बी 4. सो दैट इज अवर आंसर सिंपली, राइट. नाउ गाइस सिंपली क्या करेंगे हम, लेट्स सी द सेकंड वन. तो गाइस x पावर 4 प्लस y पावर 4, सो कैसे मिल सकता है हमें, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, जो x पावर 4 है तो कैसे मिलेगा, x स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा होगा. सो थिंक अबाउट इट इन दिस वे, लेट अस स्टार्ट विद दिस. व्हाट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना. कैन वी थिंक इट अबाउट इट लाइक दिस, क्या आएगा, x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा ना ये, है ना. सो दैट मीन्स इफ आई एम एबल टू समहाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसमें देखो x एंड व्हाट इज दिस टर्म इज इफेक्टिवली xy का होल स्क्वायर, है ना. तो अपना काम हो जाएगा. सो माई एम शुड बी नाउ टू फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, एंड दैट इज क्वाइट इजी. हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं गाइस, x माइनस वाई का, है ना, सिंपल. सो लेट अस स्क्वायर इट, ये भी लिखते हैं, x माइनस वाई का स्क्वायर इज 8 स्क्वायर, लेट्स राइट इट एज वेल. तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy equal to, sorry, minus 2xy equal to 64. So now putting the value of xy, है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. तो गाइज व्हाट विल इट गिव अस, ओके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस 2 टाइम्स माइनस 15 इक्वल टू 64. तो गाइज यहां से हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, माइनस 15 इंटू माइनस 2 इज 30 प्लस 30, उधर जाएगा तो गाइज क्या आ जाएगा, 34, राइट. नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट बैक इन दिस. तो गाइज 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4, जो हमें फाइंड करना है, राइट, प्लस 2 टाइम्स व्हाट इज एक्स वाई, माइनस 15 इसका स्क्वायर. सो दैट्स इट, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इज इक्वल टू 34 स्क्वायर माइनस, गाइज देखो ये 15 का स्क्वायर, माइनस 15 का स्क्वायर इज 15 स्क्वायर, तो माइनस 2 इंटू 15 स्क्वायर. तो दैट विल नीड टू कैलकुलेट गाइज. ओके, so let's see what is 34 square.
that is 6. You can do it as 30 plus 4 का whole square as well. It's up to you. ठीक है, but I'll just calculate it. 4 का square 4 2 so I think it should be guys 1156. Okay, let me check quickly. Minus 15 square is 225 into 2 is 450. तो कितना आ जाएगा गाइज इसमें अगर हम 450 माइनस कर दें, इट शुड बी 706 और समथिंग, राइट? लेट मी कंफर्म. ओके, यस. सो देखो वही आ रहा है 706. सो यस, कैलकुलेशन इज करेक्ट. सो 34 स्क्वायर इज 1156 माइनस 2 into 225 is 450. तो गाइज दिस इज 706. ओके, तो आई होप गाइज आपको ये मेथड समझ में आया कि इसको कैसे सॉल्व करके लेके आना है. ओके, ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर. ओके, ट्राई करो गाइज, जितना करोगे ना, हाथ पैर मारोगे इसमें, उतना बेटर समझ में आएगा. ठीक है ना? यू माइट थिंक कि देयर कुड बी अदर वेज एज वेल गाइज. आपने और उससे किसी से ट्राई करोगे, हो सकता है उससे भी आ जाए. ओके ओके, नाउ गाइज इट्स क्विज टाइम. क्विज टाइम का पर्पस गाइज यहाँ पे ये है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करो. आई पॉज द वीडियो, solve the question and then see the answer कि if you have gotten it right or not, है ना? we'll see कि you can actually keep a track कि how many questions you have gotten correct. ठीक है, so just take 1 or 2 minutes. बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको इसमें. so pause the video and solve the question. I'll give you the way how to solve the question afterwards. okay, just like more or less like जो हम questions कर रहे हैं, but yes, थोड़ा आपको ज्यादा सोचना है इसके ऊपर. ठीक है, make sure you should be able to do this after doing these questions. all right, let's see. I hope guys try kar lena. Okay, so here's the question, although this one is very pretty much straightforward. Okay, take your time and solve this. All right, I hope guys try kar liya aapne. So guys, as you guys must have done it, so the correct answer is D. right? Simple. ये तो हमने identity property करी है. A plus B plus C, if it is 0, then A cube plus B cube plus C cube is equal to 3ABC. right? So as per this identity that we did, है ना? तो ज्यादा इजी हो गया आई थिंक. चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे गाइस. ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस वन अगेन पॉज द वीडियो. दिस वन यू शुड सॉल्व एंड गेट द करेक्ट आंसर. इसमें गाइस स्क्वायरिंग तो नहीं करना है. ठीक है, यू हैव टू फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब. ऑलराइट, ओके, तो आई होप गाइस आपने ट्राई कर लिया इसको. सो लेट मी शो यू द करेक्ट आंसर. ओके, या फिर सॉल्व करके दिखाता हूं पहले. तो गाइस आपको x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 3 पता है. इंटरेस्टिंग मेथड है बड़ा इसको सॉल्व करने का. एंड वी आर सपोज टू फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब. सो व्हाट वी डू इज गाइस क्यूबिंग बोथ साइड्स. ओके, जस्ट क्यूब बोथ साइड्स. तो क्या मिलेगा गाइस? x का क्यूब. ओके, I'll write here x plus 1 by x whole cube is equal to 3 cube. So let's open up the cube. X cube a cube plus b cube plus what should, rather than doing 3ab square guys, ये भी कर सकते हो सीधा. 3ab टर्म क्या हो गया? 3x into 1 by x, है ना? into क्या होता है? a plus b which is x plus 1 by x. ठीक है, I've applied the property in this way. a plus b whole cube is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. I have applied it in this manner. Okay, this is equal to 27. तो गाइज आप क्या देखोगे यहाँ पे, x और 1 by x कैंसिल हो गया. एंड इंटरेस्टिंगली गाइज इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है, वो क्वेश्चन में गिवन है. सो व्हाट डू वी गेट? देखो, x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब. ओके, प्लस दिस इज 3 into 3. So 9 equal to 27. So guys this will keep on, this will result in क्या आएगा? x cube plus 1 by x cube equal to 27 minus 9, that should be 18. तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 18. That should be the final correct answer. Let's see. Okay, yes. So the correct answer is 18. So I hope you are able to get all the questions correct, है ना? Okay. Okay, so let us see some more questions, some more examples. Okay, so let's all together. Okay, again, so simple सा expression है guys.
a पावर 6 माइनस b पावर 6 डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस b क्यूब। ओके, इसको मैं लिख देता हूं प्रॉपरली, a पावर 6 माइनस b पावर 6 डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस b क्यूब इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो गाइस सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एज वी आर एबल टू सी कि नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, ऊपर ए सिक्स माइनस बी सिक्स है, वी कैन इंटरप्रेट इन टू वेज। या तो गाइस इसको ए स्क्वायर का क्यूब माइनस बी स्क्वायर का क्यूब सोच सकते हैं, और वी कैन थिंक ऑफ इट एज ए क्यूब का स्क्वायर माइनस बी क्यूब का स्क्वायर, है ना। सो इफ आई कंसिडर इट इन दैट वे, है ना, तो क्या बन जाएगा, लेट मी शो यू, ए क्यूब का स्क्वायर माइनस बी क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, दिस वन, है ना। तो क्या बन जाएगा गाइस, ऊपर इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, सो इट विल बिकम ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। और नीचे क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो फार गाइज क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब विल गेट कैंसल्ड। सो गाइज आपको ना थोड़ा अपनी आईज को ट्रेन करना है, इन द सेंस एक्सप्रेशन देख के ना आपको फील आना चाहिए कि कोई आइडेंटिटी तो नहीं है। देखो प्रीटी मच इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा बेटर आप सॉल्व कर पाओगे। सो एज डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो हमें पता है कि ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन में ये टर्म आता है, और ऊपर लिखा भी हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो लेट्स फैक्टराइज न्यूमरेटर को, क्या आएगा, फैक्टराइजेशन विल गिव अस a plus b into a square minus ab plus b square, right, and denominator में क्या है, a square minus ab plus b square। so as you can see guys ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या मिला हमें, a plus b, so that is our final answer in this case। okay, तो guys इससे कंफ्यूज नहीं होना, obviously this was dividing by the whole thing, being divided by the whole thing। okay, all right, I hope it is clear। तो गाइज ये फील थोड़ा आना चाहिए आपको, आइडेंटिटीज यू शुड बी नो, यू नो इट शुड बी बाय हार्ट, यू शुड नो दोस थिंग्स, सारे तरह के फॉर्मेट्स वगैरह आने चाहिए। सो डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस अबाउट इट इफ यू डोंट नो देम बाय हार्ट, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ट्राई टू राइट इट ऑन अ पेपर, पीस ऑफ पेपर, बार बार लिखने की कोशिश करो, या फिर एक्चुअली तो क्वेश्चंस करो, जितना यूज करोगे उसको क्वेश्चंस में उतना बेटर समझ में आएगा। ओके, फॉर दैट यू कैन डू सॉल्व एनी बुक, जिसमें से कोई बेसिक स्कूल वाली बुक्स जो कर सकते हो, जिसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इज मोर for identities only। okay, all right, so the answer is a plus b। all right, so one second, all right, let's move on, let's see the next question। this one is a very good one, थोड़ा lengthy भी जाता है, but we should know how to solve these, step by step समझेंगे। so given that the real numbers x y and z satisfy the system of equations x plus y plus z 6 पता है हमें, स्क्वायर्स का सम 26 पता है, क्यूब्स का सम 90 पता है, राइट। सो यू सी कि क्या चल रहा है, हमें लीनियर टर्म्स का सम दे दिया, स्क्वायर्स का सम बता दिया, और क्यूब्स का सम बता दिया। वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस जेड पावर 4। यहाँ पे तीन टर्म्स है, इस दो दो वाले हमने बहुत कर लिए। सो दीज आर गुड वंस, थोड़ा सोचना है और सीखना है कैसे करना है। ओके, सो गाइज हाउ डू वी फाइंड एक्स वाई जेड, थिंक अबाउट इट, कि हमें क्या आइडेंटिटी मालूम है, राइट। आई गिव यू अ हिंट। सो गाइज आई राइट हियर, देखो, वी नो दिस आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc वाली आइडेंटिटी पता है हमें, है ना। सो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, वो हमें मालूम है। क्यूब्स का सम भी पता है हमें, वी नो दिस थिंग, वी नो दिस थिंग, है ना। ओ सॉरी, ए बी सी कर देते हैं। सो ओके, राइट हियर इन एक्स वाई जेड। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली ही है, बट उसमें एक्स वाई जेड लिख दिया है, ये बन जाएगा। other bracket is x square plus y square plus z square, if you must remember, minus xy minus yz minus zx। तो गाइस प्रॉब्लम क्या है, हमें ये मालूम है x1 प्लस वाई प्लस जेड, स्क्वायर्स का सम भी मालूम है, क्यूब्स का सम भी मालूम है। द प्रॉब्लम इज आई नीड टू नो द प्रोडक्ट सम ऑफ टू एट अ टाइम, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, है ना।
तो ये हमारे माइंड में आना चाहिए कि एक बार वो आ गया तो एक्स वाई जेड तो निकल आएगा इसमें से। एंड हाउ डू आई फाइंड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स? फॉर दैट वी नीड टू डू होल स्क्वायर। किसका? ये लीनियर वाले का। ओके, लेट अस सी। तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, राइट? सो गाइज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, राइट, इक्वल टू 36। तो गाइज वी नो द सम ऑफ होल स्क्वायर्स, ये पता है हमें, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी है? 26। ओके, सो टेक इट टू द अदर साइड। तो गाइज 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 36 minus 26, that is 10, and you can see it will cancel it for 5. तो guys actually इसकी वैल्यू क्या आ गई? xy plus yz plus zx equal to 5. तो guys ये काफी काम आएगा आगे। ओके, यहां तक आई होप इट इज क्लियर। नाउ guys just substitute it in this equation, right? ये फैक्टराइजेशन के अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर द फर्स्ट पार्ट एक्स वाई जेड। तो व्हाट इज द सम ऑफ द क्यूब्स? 90। okay, shall I put it here directly? okay, हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देते हैं। क्या आएगा गाइस? 90 माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई जेड इक्वल टू ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 6 है, इनटू ब्रैकेट में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज 26 minus xy yz zx which is 5. You can see guys this is 6 into 21 है ना, so which is basically 126. I hope guys यहाँ से xyz आ रहा है, देखो। So what will this xyz give us? Okay, let me show you. तो 3 times xyz की वैल्यू क्या आएगी? 90 minus 126 which is minus 36. So guys this should give us xyz equal to minus 12. So that is what we are getting by solving this, है ना। 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ रही है? -12 आ रही है। लेट अस कंफर्म इट। ओके, एटलीस्ट दिस मच। ओके, यस, सो इट इज -12। ओके, सो इतना तो हमने कर लिया गाइस। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ फॉर द एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस जेड पावर 4 पार्ट, गाइस देखो पावर 4 कैसे आएगा? या तो, और वो भी एक्स पावर 4 वाई पावर 4 जेड पावर 4, दैट इज इफ आई होल स्क्वायर डू होल स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखो है ना। लेट्स ट्राई टू डू इट फॉर सेकंड पार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं, है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है? 26 है, तो दिस इज 26 का स्क्वायर। ओके, हाउ विल दिस एक्सपैंड? तो गाइस क्या आएगा? देखो एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस जेड पावर 4, ये तो आएगा ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में, प्लस 2 टाइम्स क्या आएगा? देखो द फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 26 का स्क्वायर। विल सी इट कितना होता है? 36 5 6 25। ओके, विल सी इट लेटर। ओके, कोई बात नहीं। ओके, 26 स्क्वायर। द प्रॉब्लम इज गाइज हमें ये तो फाइंड करना है, देखो कैसे सोचना है चीजों को, ये तो हमें फाइंड करना है, कोई इशू नहीं है। सो समहाउ आई शुड बी एबल टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, है ना, विच इज एक्चुअली व्हाट, इसको देखो ध्यान से। दिस इज गाइज व्हाट, एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड एक्स का होल स्क्वायर, इजंट इट दिस? तो ये कैसे निकालूं गाइज? सो यूज दिस, है ना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किया था ना, तो गाइज स्क्वायर दिस ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो वो ये साइड जॉब हमें करना है एक तरह से, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो गाइज क्या आएगा? देखो एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस वाई जेड होल स्क्वायर प्लस जेड एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, देखो गाइस फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट क्या आएगा? एक्स वाई स्क्वायर जेड
Okay, let me show you. X y square z plus y z square x plus z x square y, ये आ गया, which is 5 square, which is 25. Okay, right? तो guys, the interesting part is आपको ये find करना है. We need to find this. और यहां पे guys क्या देखोगे, सेकेंड ब्रैकेट में you all you need to do is take x y z कॉमन. एक काम करते हैं so that I don't have to write it again and again. इसको कुछ नाम दे दे. Let me name it something. Okay, let us name this whole expression as p. Okay, थोड़ा देखने में लिखने में इजी हो जाएगा. So this is p plus 2xyz. So guys, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आती है कि 2xyz कॉमन निकाल लो इसमें से. So you can see कि इस पूरे ब्रैकेट में से xyz कॉमन आएगा तो x plus y plus z होगा equal to 25. So guys, what is this? P plus 2 times xyz is minus 12, right? And what is x plus y plus z? That is 6 equal to 25. Okay, so we are now short of space. थोड़ा मेरे को guys add करने दो slide, just a second. Okay, so let me remove it. Don't worry, we have the other slide. This is the just the duplicated slide. तो जो हमें चाहिए वो रख लेंगे, ठीक है? All right, all right. तो as we were solving guys, यहाँ पे क्या आ गया guys? P minus 6 into 2 is 12, 12 into 12 is minus 144 equal to 25. So you see guys, P कितना आ गया? 169 आ रहा है. Okay, now put it back in this. Okay, let us remove this as well. तो x power 4 plus y power 4 plus z power 4, okay, plus 2 times इसकी वैल्यू गाइस जो p था उसकी कितनी आ गई? 169 is equal to 26 का स्क्वायर. रादर गाइस इसको 169 को 13 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना? So what do we get? So x power 4 plus y power 4 plus z power 4 equal to 26 का स्क्वायर minus 2 into 13 का स्क्वायर. So we might not need to actually calculate 26 square. 13 square कॉमन निकाल लें, we'll get 2 square, rather into 2 भी कॉमन आ जाएगा. So first bracket is 26 square ना, तो 13 square आ गया, तो 2 square बचा था उसमें से 2 भी आ गया. So 2 minus 1 बचा. You see, तो 2 into 13 square. तो इसको हटा देते हैं. क्या मिला गाइस फाइनली? Just a second. Just let me clean it up. So 13 square is 169 into 2. So how much is it? I think it is 338. Okay, just let me confirm. बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया. Okay, so it is 338. All right guys, don't worry, ये वाली slide भी रखी हुई है. I'll try to share these slides later on. Okay, you can find these thing in the content section. ठीक है, written form, ये वाले फॉर्म में जो भी रिटर्न होगा उसी फॉर्म में. Okay, all right. So guys, the final answer is 338. I hope you guys understand it कि कैसे करना है ना. So try to revisit again. Try करना खुद से कैसे करना है. I've told you the way कि guys जो चीज हम ढूंढने जा रहे हैं उसको लिखने की कोशिश करो. You might see कि हमें भाई और क्या चाहिए होगा. What we would need to calculate in order to find the required value. ठीक है, तो that thing helps. Okay, all right. Let's move on to the next question. Okay, now guys, what does it say? For any real number a, b, c, find the smallest possible values that the following expression can take. है ना, ये expression का smallest possible value क्या हो सकता है? So guys, these are very common in IAO-QM exam, such kind of questions. ठीक है, like rather JEE में भी इसका use हो जाता है. What guys you need to take, मतलब क्या ध्यान से देखना है? What you need to see is guys, a square है, b square है, c square है, लेकिन ab है और c है. Means I should try to form whole square of AB. First of all, A और B कितना चाहिए to make this use, इसको consume कर ले वो, है ना, ऐसे सोचना है. So guys, let us combine these terms only. A square, B square और AB वाला. देखो इसमें क्या होगा? Can I take 3 common? I'll be left with 3 times A square plus 9B square minus 3 कॉमन निकाल लिया तो 6AB, है ना. कितना इंटरेस्टिंगली गाइस होल स्क्वायर बन रहा है ये तो, है ना.
प्लस क्या है गाइस, सिमिलरली आई एम लेफ्ट विथ प्लस 5 कॉमन निकाल लें बाकी दो टर्म्स में से, इन दो टर्म्स में से लेट अस टेक 5 कॉमन. If I take 5 common, what do we have? C square minus 6c plus 237 है. So guys, what do we need? हमें देखना पड़ेगा कि होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इसमें मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा ब्रैकेट में, है ना. ये होल स्क्वायर तो कंप्लीट हो ही रखा है, राइट. तो सी स्क्वायर माइनस 6c है, सो आई वुड नीड प्लस 9 इनसाइड ब्रैकेट. सो सिमिलरली माइनस 9 आउटसाइड ब्रैकेट. बट गाइस जब मैं ब्रैकेट में प्लस 9 कर रहा हूं, ओके, आइदर यू कैन डू दिस थिंग, प्लस 9 माइनस 9 ब्रैकेट में ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप बाहर कुछ माइनस करोगे ना तो माइनस 9 नहीं करोगे, बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग एडिंग 9 इनसाइड द ब्रैकेट. तो एक्चुअली यू आर एडिंग 5 इंटू 9 एक्चुअली, ठीक है. वो चीज का ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है ऐसे. सो व्हाट इज इट नाउ, हम तो ब्रैकेट में ही डाल देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है. तो 3 टाइम्स a माइनस 3b का होल स्क्वायर बन गया गाइस, है ना. नाउ इफ आई से कि सी स्क्वायर माइनस 6c प्लस 9 यूज कर रहे हैं, सो दैट इज 5 टाइम्स c माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या आया गाइस, 237 माइनस 9 इंटू 5, 45 आ रहा है माइनस में, है ना. सो होल एक्सप्रेशन इज हाउ मच, 3 टाइम्स a माइनस 3b का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 5 टाइम्स c माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस क्या बचा गाइस, 8 माइनस हो गया 192, राइट. सो दिस expression can be rewritten as this form, whole square plus 192, right. तो बच्चों अब मिनिमम वैल्यू कैसे होगी, है ना. find the smallest possible values that the following expression can take. तो guys जो smallest possible value है that it could take is 192, isn't it. ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 192 से बड़ी होगी ना. कैसे, क्योंकि कोई भी होल स्क्वायर गाइस मिनिमम कितना हो सकता है, 0. होल स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव, राइट. एंड व्हेन विल दिस टेक, रादर गाइस क्वेश्चन में हमें सोचना पड़ सकता है कब होगा मिनिमम वैल्यू. आंसर इज 192 फॉर दिस, कि दैट इज द मिनिमम वैल्यू, है ना, क्योंकि जब ये दोनों होल स्क्वायर 0 हो जाएंगे. बट अंडर व्हाट कंडीशंस, व्हेन a इज इक्वल टू 3b एंड c इक्वल टू 3. तो एक्चुअली ये आपका आंसर होगा कि ये 192 अज्यूम कब करेगा वैल्यू, व्हेन यू पुट a एंड b इन सच अ वे दैट a इज इक्वल टू 3 टाइम्स b एंड c इक्वल टू 3. जब ये होगा तो आप 192 एज्यूम कर पाओगे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, अदरवाइज इससे बड़ी ही आएगी. ओके, दैट इज हाउ यू शुड थिंक अबाउट इट. ओके, सो दैट इज द आंसर. स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज 192. ओके, सो एज आई टोल्ड यू द टेक्निक ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कि एक्सट्रीम वैल्यूज निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, खासकर क्वाड्रेटिक वाले में, है ना, वहां पे यूज आता है. ओके, आई होप गाइज यू आर अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ. ओके, एंड आई होप आप देख पा रहे हो अब तक वीडियो. ओके, एनीवेज यू हैव द लिबर्टी टू पॉज एंड वॉच इट आफ्टर वाइल, है ना, टेकिंग अ ब्रेक. ओके, ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइज. सी गाइज, we have to find the expression 2 plus 1, 2 square plus 1, 2 power 4 plus 1. तो गाइस पता है क्वेश्चन में काफी बार तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है दैट यू आर एबल टू फाइंड, ऑब्जर्व द पैटर्न. इसमें पैटर्न क्या दिख रहा है कि 2 की जो पावर्स हैं वो डबल हो जा रही हैं, है ना, डबल हो जा रही हैं पावर्स. पावर डबल कब होती है, और प्लस प्लस में हो रही है ना. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, यू शुड पॉज इट एंड ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट, है ना. अगर कर पाओगे दैट इज अ वेरी गुड थिंग. ओके, so pause the video and try to solve it and then watch the solution. Okay, I hope you have tried all everyone. तो guys 2 plus 1, 2 square plus 1, 2 power 4 plus 1. तो guys हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, how do I make it a square, और वो चीज कंबाइन हो जाए. So very interesting thing in this thing is guys, इस एक्सप्रेशन में ना multiply by 2 minus 1. 2 minus 1 is 1 itself, है ना. तो मल्टीप्लाई करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन, ये ब्रैकेट में 2 minus 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इट शुड नॉट चेंज अ थिंग, 2 minus 1 is 1. अगर कर भी रहा होता ना गाइज तो डिवाइड कर देते 2 minus 1 से, कोई दिक्कत नहीं. बट नाउ गाइज पता है क्या होता है, इससे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, एक चेन रिएक्शन ट्रिगर हो जाती है. चेन रिएक्शन ट्रिगर हो जाती है. क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. व्हाट विल हैपन, दिस 2 minus 1 और 2 plus 1 कंबाइन होकर क्या बनेंगे, 2 square minus 1 बन जाएंगे, a plus b, a minus b आइडेंटिटी से, है ना. और अगला टर्म क्या लिखा हुआ है, 2 square plus 1, देन 2 power 4 plus 1.
है ना. सो इट्स कीप ऑन गोइंग टिल 2 पावर 10 प्लस 1 प्लस 1. सो एज यू कैन सी, अब वो हमने कंबाइन किया, वो कंबाइन होके बन गया ये. नाउ 2 स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस विल कंबाइन टू गिव यू 2 पावर 4 माइनस 1, है ना. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है. अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे. सो दिस विल गिव यू 2 पावर 8 माइनस 1. सो यू सी चेन रिएक्शन क्यों बोल रहा हूं, दो दो को खाता जा रहा है एक तरह से, है ना. कंबाइन होके बड़ा होता जा रहा है. सो फाइनली द लास्ट टर्म इसके साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा गाइज. उसके लिए पैटर्न देखो, कोई भी टर्म जब कंबाइन होता है उसका जो 2 का पावर है क्या हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है. मीनिंग यू विल गेट 2 पावर 10 का स्क्वायर माइनस 1. ये जो टर्म है 2 की पावर 10 उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस 1 अलग से आपके पास ये वाला 1 लिखा हुआ है, राइट. सो ये तो कैंसिल हो जाएगा. सो डोंट गेट कंफ्यूज क्या होगा. तो गाइज होल का स्क्वायर हो रहा है, तो 2 की पावर में 2 पावर 10 पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई. तो 2 पावर 10 इंटू 2. सो दिस विल गिव यू 2 पावर 11. ओके, विच इज 2 की पावर में 2 पावर 11 कितना होता है गाइज, 2048. ओके, you should remember the powers of 2 as well, that is very useful. ओके, 2 पावर 10 इज 1024. कंप्यूटर्स में यूज होता है ये नंबर, है ना, जिसको आप मेगाबाइट किलोबाइट ऐसे बोलते हो. एक्चुअली इट इज द अमाउंट ऑफ बाइट्स इन अ किलोबाइट इज 1024, and 1024 kilobytes make up 1 megabyte and gigabyte and so on. तो 2 पावर 10 को याद रख सकते हो, 1024 है, तो 2 पावर 11 इज उसका डबल 2048. So the final answer will be 2 की पावर 2048. Okay, so let's confirm. Yes, so that's the answer, 2048, है ना, 2 की पावर में 2048. तो guys that is why this is very interesting question. आपको ध्यान रखना है कि वो आइडेंटिटी कंबाइन हो सकती है कि नहीं, है ना. दिख जाएगा वो कि पैटर्न क्या चल रहा है, उसको देखते हुए गाइज यू हैव टू थिंक कि कौन सी आइडेंटिटी आपको बेनिफिट दे सकती है. ओके, सो दैट्स इट गाइज. हमारा आइडेंटिटीज का पोर्शन इज प्रीटी मच कवर्ड विद दिस. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. यू कैन टेक अ ब्रेक हियर एज वेल. ओके, लेकिन ये लेक्चर अभी कंप्लीट करते हैं हम. ओके, ऑलराइट, यू कैन टेक अ ब्रेक अदरवाइज एंड देन वॉच इट आफ्टर सम टाइम. ओके, सो लेट्स सी द फैक्टराइजेशन गाइज. नेक्स्ट पोर्शन इज फैक्टराइजेशन. तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है गाइस, ऑल्दो हमने आइडेंटिटीज यूज कर ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर वी शुड नो हाउ टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सो टू से. आई होप आप सबने काफी लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, है ना. आई जस्ट गो थ्रू इट. तो गाइस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या होता है. सो लेट्स से गाइस द प्रोडक्ट, द कांस्टेंट टर्म, आपको अगर उसको लिख पा रहे हो, जो सम है, x का कोफिशिएंट जो है, इफ यू आर एबल टू राइट इट एज अ सम ऑफ द टू, व्हाट हैपेंस इज यू कैन फैक्टराइज इट. सी मैं थोड़ा करके दिखाता हूं. एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी कर दिया आपने उसको, क्योंकि प्रोडक्ट जो ए बी था, यू आर एबल टू राइट इट एज एक्स के कोफिशिएंट को आप उसका सम लिख पा रहे हो, कोई दो टर्म्स का. सो व्हाट हैपेंस इज यू टेक एक्स कॉमन इन द फर्स्ट टू, यू गेट एक्स प्लस ए. यू टेक बी कॉमन आउट ऑफ द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स, you get x plus a. So you see you get factorized x plus a common and you get x plus b. तो ये सबसे बेसिक है गाइस, x plus a x plus b लिख सकते हो अगर आपको प्रोडक्ट. सो द पॉइंट बीइंग गाइस, व्हाट इज a plus b, दैट इज द x का कोफिशिएंट, और a b क्या है, कांस्टेंट टर्म है. तो आप ये करते आए हो कि कांस्टेंट जो टर्म है, यू हैव टू थिंक कि भाई उसके क्या फैक्टर्स बना सकते हो. यू हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू टू सच फैक्टर्स जिनका सम x का कोफिशिएंट बन रखा हो. So you can factorize it as x plus a into x plus b then, है ना. Similarly, but अगर guys ये कब काम करता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जब 1 हो, and if it is not 1, let's say it is of the form ac, ठीक है, और प्रोडक्ट जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज bd, then you have to think कि जो ac into bd है, ठीक है ना, कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का जो प्रोडक्ट है, देन यू मस्ट थिंक कि उस प्रोडक्ट को अगेन दो फैक्टर्स में कैसे डिवाइड करें, बांटें, सो दैट देयर सम इज द कोफिशिएंट ऑफ x. यहां पे x का कोफिशिएंट बन जाए ये वाला. ओके, सो उसके लिए क्या होगा, जैसे अभी यहां पे तोड़ पा रहे हैं ना, AC इंटू BD इज द प्रोडक्ट. तो आई एम एबल टू प्रोडक्ट ब्रेक इट डाउन एज AD प्लस BC, उसी का प्रोडक्ट का दो फैक्टर्स बना दिए. सो व्हाट विल हैपन देन, देखो AC x स्क्वायर
प्लस ADX प्लस BCX प्लस BD लिख पा रहे हो, है ना। सो लेट अस सी फर्स्ट टू टर्म्स में से गाइस क्या कॉमन आ रहा है, AX कॉमन आ रहा है ना। क्या मिला अंदर, CX प्लस D, है ना। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ टर्म में गाइस क्या कॉमन आ रहा है, B कॉमन आ रहा है, यू गेट CX प्लस D अगेन. Now you can see CX plus D कॉमन आ रहा है and we are left with AX plus B. So that is how you are getting this factorization, है ना. तो this is called middle term splitting. I understand आप लोगों ने काफी कर रखा होगा स्कूल में, you must be used to it, है ना. तो अगेन इसके लिए भी गाइस काफी बेसिक से क्वेश्चंस हम करेंगे एक बार के लिए, तो जैसे स्कूल में करते हो आप, है ना. तो विल नॉट गो मच डीपर इन दिस थिंग, आपको ये आती हैं चीजें. सो जस्ट टू रिमाइंड यू, ओके. आई होप दिस थिंग इज क्लियर गाइस, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए. सो अगेन रीआइटरेटिंग, आपको क्या करना है गाइस, जो एक्स को एज अ रूल क्या कर सकते हो आप याद, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट जो आएगा, यू मस्ट थिंक कि उसके क्या फैक्टर्स बनाए कि उनका जो सम है वो एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल आ जाए, एंड ट्राई टू राइट इट इन दैट मैनर. ओके, सो लेट मी शो यू, है ना. ओके, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. ओके, हियर इट इज. बहुत बेसिक क्वेश्चंस लिए गाइस, दोनों का एक एक टाइप लिया हमने. देखो, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. तो गाइस धीरे धीरे शॉर्टकट मारने लग जाओगे आप, ठीक है. तो जैसे फर्स्ट को करते हैं, तो गाइस व्हाट आई हैव टू सी इज प्रोडक्ट इज -6. डोंट थिंक अबाउट 6, प्रोडक्ट इज -6 या कांस्टेंट टर्म इज -6. तो मुझे -6 के फैक्टर सोचने, सो दैट देयर सम इज x. ओके, और इन अदर टर्म्स गाइस ये भी कह सकते हो, अगर माइनस साइन होता है ना, तो नंबर प्रोडक्ट क्या है, 6 है नंबर्स का. तो यू हैव टू थिंक सच नंबर्स जिनका डिफरेंस 1 हो जाए, है ना. तो 6 के वेरी इजी फैक्टर्स कि सम 1 आ जाए, क्या होगा, 3 और -2, है ना. सो व्हाट इज द वेज, हम ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, है ना. इसी x को लिख रहे हैं ना, आई एम नॉट चेंजिंग द इक्वेशन एट ऑल, है ना. 3 - 2 -6, आई एम नॉट चेंजिंग द इक्वेशन एट ऑल. बस हमें पता लग जाता है कि जो मिडिल टर्म है उसको कैसे लिखना है ना, विद द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कॉन्सेप्ट. तो 6 को तोड़ा दो पार्ट्स में, 3 and 2 से, और 3x - 2x हो गया. नाउ यू कैन सी फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, x, वी गेट x - 3, है ना. माइनस थर्ड, इन दो टर्म्स में से -2 कॉमन आ जाएगा अगेन. ओके, सॉरी, x + 3 आया ना, और -2 कॉमन, आई अगेन गेट x + 3. सो गाइज व्हाट इज द फैक्टराइजेशन, x + 3 कॉमन आ गया, बचा क्या, x - 2. सो दैट इज हाउ वी फैक्टराइज, है ना. तो धीरे धीरे गाइज यू विल बी एबल टू स्किप दिस स्टेप इनसाइड इन बिटवीन. अब डायरेक्टली ये लिखने लायक हो जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसे लिख पा रहे हैं डायरेक्टली, है ना. x + 3 × x - 2 हम लिख सकते हैं, बट नॉट फॉर द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन. इसके लिए वो करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है. सो सेकेंड पार्ट, तो गाइज देखो क्या करना है, 2x² - 10x + 8 है. तो गाइज देखो अगेन क्या सिखाया था हमने, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, व्हाट इज द प्रोडक्ट, 2 × 8 16. सो आई नीड टू थिंक इस 2 × 8 16 के फैक्टर्स जिनका सम -10 आ जाए. सो दैट इज वेरी इजी गाइज, वो तो -2 और -8 ही हो गए ना, राइट. तो वो तो प्रीटी मच इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, वही हो गए नंबर्स. तो क्या करेंगे, लिखेंगे उसको 2x² - 2x - 8x, 10x को तोड़ दिया, -10x ही रहना चाहिए. देखो -2x - 8x still adds up to -10x, है ना. It's just a way to solve, +8. Now guys take 2x common in the first two, क्या मिला, x - 1 -8 कॉमन, अगेन x - 1. तो गाइस फाइनली x - 1 भी कॉमन आ गया, क्या मिला, 2x - 8. और एक्चुअली यू कैन सी कि आप, अब देखो इन हाइंडसाइट वी कैन सी नाउ, थोड़ा ध्यान नहीं दिया हमने, हम 2 कॉमन भी ले सकते थे, है ना. सी अदर वे राउंड, 2 कॉमन लेते अगर, देन x² - 5x + 4 हो जाता. देन 4 के फैक्टर सोचने पड़ते जिनका सम 5 होता, -5. सो दैट वुड बी -1 - 4. सो यू कुड हैव फैक्टराइज्ड इट डायरेक्टली एज 2 times x - 1 x - 4 इन द सेम मैनर. और ये भी वही है गाइस, आप इसमें से 2 कॉमन लोगे, दिस इज अगेन 2 times x - 1 x - 4. ओके, तो बोथ वेज यू आर गेटिंग द सेम थिंग. ओके,
आई होप दिस इज क्लियर गाइज. ओके, आई थिंक स्कूल में गाइज कुछ ऐसा मेथड यूज करते हैं. आई एम नॉट मच फेमिलियर विद इट. ठीक है, बट आई थिंक दैट इज इजियर टू डू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इन दैट वे, है ना. तो ओके, ऑल राइट. सो वन लास्ट क्विज क्वेश्चन. ओके, देन विल एंड द वीडियो. ओके, कंप्लीट द वीडियो विद इट. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन गाइज. ट्राई करना जल्दी से करने की. ओके, एंड देन विल सी द सॉल्यूशन. ऑल राइट, हियर इज द क्वेश्चन. So we have to factorize x square plus 2 root 2x minus 6. तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं गाइस काफी लोग. ओके, सो थोड़ा ट्राई करो. लेट्स सी. ऑलराइट, आई होप गाइस ट्राई कर लिया सबने, एंड होप सबने आंसर निकाल लिया है. सो गाइस यहाँ पे देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है. सो आई हैव टू फैक्टराइज 6 सो दैट द सम इज 2 root 2. तो गाइस एक बात तो यहाँ पे ये आती है, हैव टू समहाउ गेट रूट 2, है ना. 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 2. Then I can further write it as 3 into root 2 into root 2. So that कि 2 का सम आ जाए ना 2 root 2, है ना, या डिफरेंस आ जाएगा. सॉरी, -6 इज द प्रोडक्ट, है ना. कांस्टेंट इज -6, सो डिफरेंस इज 2 root 2. सो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज सिंपली 3 root 2 and root 2, है ना. यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है दैट इज 3 root 2 and root 2. ओके, सो लेट्स सी. सिंपली ब्रेक करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 3 root 2x माइनस रूट 2x. सो गाइज हमेशा ध्यान रखना, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसको स्प्लिट करना है. देखो वर्ड से क्लियर होना चाहिए, वी आर ओनली स्प्लिटिंग इट, द थिंग शुड नॉट चेंज एज सच. तो 3 root 2 माइनस रूट 2 इज स्टिल 2 root 2, है ना. दैट इक्वेशन शुड रिमेन अनचेंज्ड. चेंज थोड़ी कर देंगे. तो x कॉमन, यू विल गेट x प्लस 3 root 2 माइनस रूट 2 कॉमन, अगेन x प्लस 3 root 2. 6 को अब 6 में से रूट 2 निकालेंगे तो 3 root 2 बन जाएगा, right. So we'll get x plus 3 root 2 into x minus root 2. Guys यहाँ पे ध्यान रखना 3 root 2 कॉमन हो जाएगा. If you are taking root 2 common, 6 is made up of 3 root 2 into root 2. तो root 2 बाहर निकला है तो 3 root 2 बचेगा, ध्यान रखना. So this is coming out to be the factorization. So which is the correct answer? I think option A बनना चाहिए, right? So x plus 3 root 2 into x plus root 2, x minus root 2, correct? So let's confirm, yes. So option A is the correct answer. तो guys factorization I think बेलो जस्ट ऐसे ही करवा दिया हमने, कर रहे हैं because I think ये सब आपने स्कूल में किया होता है ना. If you're preparing for Olympiad you must be knowing these things already. At least factorization स्कूल में आती होगी, 8th में करा दी जाती है, right? Quadratic expression को split करना and everything. Okay, all right. So guys that's it. हमने factorization कर लिया है, basic identities कर लिए. Might see some more questions in the next session, next video. Some more questions for regarding this, ठीक है. Okay, so furthermore we'll cover inequalities, wavy curve and everything in the subsequent sessions. Okay, so guys do solve the assignment that is given. Okay, वो आपके content section में रहेगा. So please solve the assignments, है ना. Then only you'll get the maximum benefit. तो assignments आप जरूर solve करते रहो. Doubts you can post it in the chat section or we will on the Telegram thing, right? We'll do that. Okay, you can send your doubts. Okay, all right guys. So thank you everyone. We'll see you in the next video. Okay, in the next session, and do solve the assignment. Okay, thank you.